Good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the unit number 6. What is heat exchangers? Okay. And our today's lecture number is lecture number 58. Lecture number 58. Okay. What is the name of the unit number 6? The unit number 6 is what is heat exchangers. Okay. So look at the definition of the heat exchangers. I show the figure of this heat exchanger here. If you observe here, this is the diagram of the heat exchangers. Okay. So what is heat exchanger? A heat exchanger may be defined as a equipment. This is our equipment which transfer the energy from hot fluid to cold fluid with a maximum rate and minimum investment and running cost. It's called as a heat exchangers. Okay. So if you observe here, there is a heat transfer from hot fluid to cold fluid. If you consider, guys, this is the cold fluid is enter in a heat exchangers. Okay, hot fluid, and this is the cold fluid F1. This cold fluid is circulated through this pipe. Okay, this fluid is warm. We getting the warm fluid out. This is a hot fluid enter, and which is surrounded outside this tube. We get here what is cold fluid because of the what is heat exchange. That is the definition of the heat exchangers. In heat exchanger, the temperature of each fluid changes as it pass through the exchangers. बराबर है, सब फ्लूइड का टेम्परेचर यहाँ पे बदल जा रहा है जैसा जैसा वो हीट एक्सचेंजर में से ट्रांसफर हो रहा. And hence the temperature of the dividing wall between the fluid also change along the length of the exchangers. अब यहाँ से ये लेंथ है हीट एक्सचेंजर की, यहाँ पे कुछ कोल्ड टेम्परेचर है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, हाई हो गया. यहाँ पे हमारे पास में हॉट टेम्परेचर है, लेकिन जैसे जैसे हीट फ्लो हो रही है अक्रॉस, यहाँ पे हमारे को कोल्ड फ्लूइड मिल गया. ओके. So what are the example? So there are so many example of the heat exchanger. What is intercooler, preheaters is already learned in 4th semester. Then we know the condenser. We already very well learn in 4th semester condenser. We already learned the boilers in a steam power plant. This is the example of heat exchanger. Condenser, evaporator in the refrigeration system, regenerators, automobile radiators. You know the radiator. This is the example of what is heat exchangers. Oil coolers of a heat engine in automobiles, we know that there is a use of the oil coolers. Milk chiller of a pasteurizing plant and several other industrial processes. So if you observe here, there is different diagram of the heat exchangers. This is the counter flow, this is the counter current flow, cross flow and cross counter flow. Okay, this will be discussed later. These are the type of the heat exchangers. So this is our headings. What is the types of heat exchangers? Okay. So first classification, what is you observe here? In order to meet the widely varying applications, several type of the heat exchangers have been developed, which are classified on the basis of nature of heat exchanging process, relative direction of a fluid motion, designing and constructional features and physical state of the fluids, on which parameters the heat exchanger will be designed and classified. So our first classification, what is nature of a heat exchanger process? What is the process will be there? So heat exchanger on the basis of nature of a heat exchange process are classified as, पहला कौन सा है बच्चों, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ओपन हीट एक्सचेंजर्स. यहाँ पे दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, किसका, हॉट फ्लूइड का और कोल्ड फ्लूइड का. ये देखिए एग्जांपल, दिस इज द वन फिगर ऑफ द हीट एक्सचेंजर्स डायग्राम्स. ओके. सेकंड इज व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द हीट एक्सचेंजर्स, मतलब यहाँ पे इसके थ्रू फ्लूइड जाएगा और इसके सराउंडिंग में क्या रहेगा, हमारा हॉट फ्लूइड, इसके अंदर से कोल्ड फ्लूइड जा रहा, मतलब दोनों के बीच में इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहने वाला है. तो इसके अंदर आगे हमारे पास में रीजनरेटर आगे या फिर रिक्यूपरेटर्स. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द व्हाट इज इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स. जैसे हमने इनडायरेक्ट कंडेंसर पढ़े थे, सरफेस और जेट, उसी तरह. तो पहला जो है हमारा वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर्स. ओके. इफ यू ऑब्जर्व हियर इन दिस डायग्राम, दिस इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ओपन हीट एक्सचेंजर्स. व्हाट यू ऑब्जर्व हियर गाइस, in a direct contact or open heat exchanger, the
heat exchanger, the exchange of a heat takes place by direct mixing of hot and cold fluids. Okay, दोनों का mixing direct हो रहा, and transfer of a heat and mass takes place simultaneously. The use of such unit is made under the condition where mixing of a two fluid is either harmless or desirables. Okay, so what is the example? Cooling towers. पावर प्लांट हमने पढ़ा था बच्चों, पावर प्लांट में हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कूलिंग टावर्स. तो कूलिंग टावर्स जो है हमारे, वो कौन से एग्जांपल है? डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर वाले. ओके, जेट कंडेंसर अभी भी मैंने बताया कंडेंसर के बारे में. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फीड हीटर्स. ओके, so figure this 10.1 shows the direct contact of the heat exchanger in which the steam mix with the cold waters. If you consider this is the steam which enter, this is the steam bubbles, okay, and which directly mix with this cold water will be theirs. Okay, if you consider here cold water is enter this portion, the steam will be enter, and they both are directly mixings. In which the steam mix with the cold water and give its latent heat to water and gets condensed. यहाँ पे latent heat उसकी ट्रांसफर हो जाएंगी बच्चों, मतलब फेज चेंज हो जाएगा latent heat में. And hot water and non-condensable gas leave the container as shown in figure. यहाँ पे स्टीम की latent heat ट्रांसफर हो गई, फेज चेंज हो गया स्टीम का वाटर में. यहाँ पे हमको मिल गया फिर नॉन कंडेंसेबल गैस विच इज कम एट द टॉप पोजिशन ऑफ दिस हीट एक्सचेंजर्स. So what is here? In this type of heat exchanger, the heat transfer between two fluids could be carried out by transmission through the wall which separate the two fluids. This type includes the following. What is regenerators or recuperators और surface exchange. बराबर है. ये हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का होगा जो हमने अभी पढ़े. इनडायरेक्ट वाले में क्या है? रीजनरेटर्स है और रिक्यूपरेटर्स है. तो पहला पढ़ते हैं बच्चों रीजनरेटर्स. रीजनरेटर में क्या है? In regenerator type of heat exchanger, the hot and cold fluids pass alternately through a space containing solid particles. These particles providing alternately a sink and source heat flow. एग्जाम्पल अगर देंगे रीजनरेटर के तो कौन सा हो गया हमारे पास में? आईसी इंजन देखा होगा आपने, गैस टर्बाइंस हो गए, ओपन हार्ट एंड ग्लास मेल्टिंग फर्नेस हो गए, एयर हीटर्स ऑफ अ ब्लास्ट फर्नेस. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रीजनरेटर्स. Regenerator generally operates periodically. The solid matrix alternately store heat extracted from the hot fluid then delivers into the cold fluids. So however in some regenerator the matrix is made to rotate through the fluid passage arranged side by side which make the heat exchanger process continuous. Okay. So the performance of the regenerator is affected by the following parameters. Which one? Heat capacity of the regenerating material, the rate of observation and release of a heat. ये पैरामीटर उसके अफेक्ट करेंगे. एडवांटेजेस क्या है देखिए इसके? हायर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, लेस वेट पर किलो ऑफ द प्लांट, मिनिमम प्रेशर लॉस, क्विक रिस्पॉन्स टू लोड वेरिएशंस, स्मॉल बल्की वेट एंड इफिशिएंसी इज क्वाइट हाई. ओके. And then what is the disadvantages? Costlier compared to the recuperative heat exchangers, leakage in the main trouble, therefore perfect sealing is required. Second is बच्चों हमारे पास में recuperators. तो recuperator देखिए क्या होता है? Recuperator is the most important type of heat exchanger in which the flowing fluid exchange the heat are on either side of the dividing wall. जैसे दोनों साइड से डिवाइडिंग वॉल है, दोनों साइड से हीट क्या होंगी? एक्सचेंज होंगी इन द फॉर्म ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स. जनरली द हीट एक्सचेंजर आर यूज व्हेन टू फ्लूइड्स कैन नॉट बी अलाउड टू मिक्स व्हेन मिक्सिंग इज अनडिजायरेबल्स. दैट इज कॉल्ड एज द रिक्यूपरेटर्स. एग्जांपल व्हाट इज? ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स. रेडिएटर जो एग्जांपल है वो किसका है? रिक्यूपरेटर का. ऑयल कूलर्स है हमारे फोर व्हीलर में, इंटर कूलर्स रहते हैं. एयर प्रिएटर हमने पढ़े 4 सेम में, इकोनोमाइजर भी पढ़े हमने 4 सेमिस्टर में बच्चों, सुपर हीटर भी पढ़े हमने, कंडेंसर भी पढ़े, सरफेस फीड हीटर्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट. ये सब एग्जांपल किसके हैं? रिक्यूपरेटर के. और ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मिल्क चिलर ऑफ अ पैस्चराइजिंग प्लांट और इवापोरेटर ऑफ आइस प्लांट्स. So what is the advantages? Easy construction, more economical, more surface area for heat transfer, much suitable for stationary plants. स्टीम पावर प्लांट जो होता है हमारा वो स्टेशनरी प्लांट्स होता है. डिसएडवांटेज देखिए क्या है? लेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है,
less generating capacity and shooting problems. We know the shoot. Okay. The flow through the direct heat exchanger and recuperator may be treated as a steady state, while through the regenerator flow is essentially transient. तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड कौन सा क्लासिफिकेशन है बच्चों इसका वाला, सेकंड क्लासिफिकेशन है रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ अ फ्लूइड मोशन, मतलब फ्लूइड का मोशन किस तरह से है। तो देखिए कैसा है पहला, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ अ टू फ्लूइड द stream the heat exchange are classified into the following three categories. ये सबसे IMP है बच्चों, this is the very IMP. First is what is parallel flow or unidirection flow, second is what is counter flow and third is cross flow. तो पहला कौन सा है बच्चों, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स, बराबर है। अब पैरेलल फ्लो की मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, इफ यू ऑब्जर्व दिस फिगर्स, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप हॉट फ्लूइड, ये हमारा हॉट फ्लूइड और ये कोल्ड फ्लूइड जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं बच्चों पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। ओके, देखिए इसकी डेफिनेशन, इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एज द नेम सजेस्ट द टू फ्लूइड स्ट्रीम्स हॉट एंड कोल्ड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शंस, दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। द two stream enter at one end. Okay, this is the entering end hot fluid, this is the entering of the cold fluid, and leaving at the other ends, this is the hot fluid and this is the cold fluids. The flow arrangements and variation of a temperature of the fluid streams in case of parallel flow heat exchangers as shown in figures. It is evident from the figure the temperature difference between the hot and cold fluid goes on decreasing from inlet to outlet. Since this type of heat exchanger need a larger area, this is very important, larger area of a heat transfer, therefore it is rarely used in practice. अगर ये ग्राफ देखेंगे बच्चों, टेम्परेचर अलॉन्ग द वाई एक्सिस है ये टेम्परेचर और अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है हीट एक्सचेंजर की लेंथ, जो यहाँ से इसकी लेंथ होगी कुछ भी। अगर ये हॉट फ्लूइड का सिंबल बताया मैंने TH1 से, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे। यू पे ऑब्जर्व देयर, दिस इज द TH2, मतलब TH1 इज ग्रेटर देन TH2 हॉट फ्लूइड। और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, राइज होगा। ये देखिए कोल्ड फ्लूइड आ रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, TC1 इज राइजेस लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम TC2 इज ग्रेटर देन TC1, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे बच्चों तो क्या है, TH2 जो है वो ग्रेटर है किससे, TC2 से। दिस इज वेरी IMP डायग्राम, और दोनों के एरो देखो, द एरो इज सेम डायरेक्शंस। दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। इसके कुछ एग्जांपल अगर होंगे लेंगे हम, तो ऑयल कूलर है, ऑयल हीटर है, वाटर हीटर्स है। दिस इज द एग्जांपल्स। एज दिस टू फ्लूइड्स सेपरेटेड बाय द वॉल्स, so this type of heat exchanger may be called as the parallel flow recuperator or surface heat exchangers. सेकंड देखिए बच्चों क्या है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। काउंटर का मीनिंग हमको समझ में आ गया, उल्टा। तो देखिए इसमें क्या है, इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द टू फ्लूइड फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड एंटर्स एट द अपोजिट एंड्स। The flow arrangement and temperature distribution for such heat exchanger as shown in figures, ये फिगर हमको दिख रही है, right? The temperature difference between these two fluids remains more or less or nearly constants. This type of heat exchanger due to the counter flow gives maximum rate of heat transfer for a given surface area. Hence, such heat exchanger are most favored for a heating and cooling ऑफ द फ्लूइड्स। मतलब ये ज़्यादा यूज होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा। ये देखिए डायग्राम, ये TH1 हमारा हॉट फ्लूइड है, ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा TH1, दिस इज द TH2। लेकिन कोल्ड फ्लूइड अगर देखेंगे तो ये उसके अपोजिट में है, दिस इज द कोल्ड फ्लूइड। तो दोनों के जो डायरेक्शन है फ्लो होने की वो क्या है, अपोजिट है। ग्राफ देखिए बच्चों, टेम्परेचर वर्सेज लेंथ, अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमारा टेम्परेचर है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर है। इसके अंदर अगर हॉट फ्लूइड देखेंगे हम TH1, तो ये देखिए TH1, दिस इज द हॉट फ्लूइड। और कोल्ड फ्लूइड देखो बच्चों, दिस इज द कोल्ड फ्लूइड।
सो बोथ हैविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो TH2 इज लेस देन TH1 एंड TC1 आल्सो लेस देन TC2। लेकिन TH1 जो है बच्चों वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, TC2 से। So this is the explanation about the counter flow heat exchangers. Now another is what is क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। क्रॉस फ्लो में देखिए बच्चों, क्रॉस फ्लो की डायग्राम मैं बता देता हूँ यहाँ पे भी आपको एक बार। ये देखिए, ये हमारी क्रॉस फ्लो की डायग्राम है। दिस इज द फ्लो अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉस फ्लो। ये देखिए ऊपर से आ रहा है और एक साइड से जा रहा है, ये साइड से आ रहा है और ये ऐसा आ रहा है, बोथ आर इन क्रॉस। ये काउंटर फ्लो की है और ये कॉन्क्रुएंट। कॉन्क्रुएंट को ही क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो कॉन्क्रुएंट को ही। तो देखिए क्रॉस फ्लो के बारे में। So see here guys, what is in cross flow heat exchangers? So look at, this is the diagram of the cross flow. So what is here in cross flow heat exchanger, the two fluids, which one hot and cold, cross one another in a space. स्पेस में एक दूसरे को क्या हो जाएंगे बच्चों, क्रॉस हो जाएंगे। यूजुअली एट अ राइट एंगल्स, मतलब दोनों में क्या रहेगा, एक राइट एंगल्स रहेगा। देयर इज अ राइट एंगल्स, इफ यू ऑब्जर्व देयर 90 डिग्री। ओके, shows the schematic diagram common arrangement of a cross flow heat exchangers. तो देखिए बच्चों यहाँ पे refer to figure number A, cold fluid out, there is a cold fluid out also. So hot fluid flow in the separate tubes. Okay, hot fluid, if you observe here, the hot fluid flowed in a separate tubes, there is no mixing of a fluid stream, दोनों में कोई mixing नहीं है। The cold fluid is perfectly mixed as it is flow through the heat exchangers. The temperature of the mixed fluid will be uniform across any section, will vary only in the direction of a flow guys. यहाँ पे देखिए ये ट्यूब्स है हमारी, these are the tubes, number of the tubes will be there guys. ये ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको। ये ट्यूब्स में क्या जा रहा है हमारा, हॉट फ्लूइड इन, इसके थ्रू जा रहा है और इसके बाहर निकल रहा है हमारा ये हॉट फ्लूइड आउट। और ये जो कोल्ड फ्लूइड है मिक्स ऑन अ हॉट स्ट्रीम, इसके ऊपर से ये राइट एंगल होके क्या जा रहा है, इसके ऊपर से फ्लो हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस हीट फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। यहाँ पे भी एक दूसरा डायग्राम दिया है बच्चों। एग्जाम्पल अगर लेके हम इसका वाला क्रॉस फ्लूइड आउट, मतलब कोल्ड फ्लूइड आउट। कोल्ड फ्लूइड आउट मतलब क्या है बच्चों, ये ट्यूब के ऊपर से जा रहा है। ये ट्यूब है हमारी, हमने बॉयलर में पढ़े थे। इसके अंदर से क्या जा रहा, हॉट फ्लूइड जा रहा और इसके ऊपर से क्या आ रहा, ये कोल्ड फ्लूइड आउट है, इसलिए इसका मीनिंग आ गया यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड आउट। ओके, सेकंड है कोल्ड फ्लूइड इन, मतलब कोल्ड फ्लूइड कहाँ जाएगा, इसके अंदर से जाएगा। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे द कोल्ड फ्लूइड आउट, यहाँ पे भी कोल्ड फ्लूइड आउट ही है। तो देखिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया द कूलिंग यूनिट ऑफ द रिफ्रिजरेशन सिस्टम, ये पहला एग्जाम्पल। सेकंड फिगर देखिए, okay, so in second figure what is, if you observe in second figure, figure number B, cold fluid out, you observe the diagram there. In this case each of the fluids follows prescribed path and is unmixed। दोनों क्या है बच्चों, अनमिक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अनमिक्स है, दोनों मिक्स नहीं हो रहे। यहाँ पे क्या हो रहे थे, दोनों के दोनों मिक्स हो रहे थे बच्चों। ओके, यहाँ पे अनमिक्स है, ये देखिए यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे अनमिक्स है। एज इट फ्लो थ्रू द हीट एक्सचेंजर हेंस द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड लिविंग द हीटर सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे हॉट फ्लूइड इन अनमिक्स स्ट्रीम,
इसके थ्रू हमारी हॉट फ्लूइड जा रहा है बच्चों, हॉट फ्लूइड विल बी फ्लो। ओके, यहाँ पे हॉट फ्लूइड आउट। ये बेपल्स प्लेट दी है, बेपल प्लेट का काम है ये सपोर्ट करना हीट एक्सचेंजर को, टू सपोर्ट द हीट एक्सचेंजर्स, एंड दिस इज द कोल्ड फ्लूइड इन अनमिक्स। ये पाइप के थ्रू हमारा कोल्ड फ्लूइड जा रहा है। अगर हम देखेंगे इनके बीच में कितना एंगल है बच्चों, 90 डिग्री का, यही हमारा है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। इसका अगर एग्जांपल देंगे हम तो कौन सा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, रेडिएटर का, वो इसका कैटेगरी है। विच वन, cold fluid in unmixed stream. Okay, this is the example of the automobile radiators. In yet another arrangement, both the fluids are mixed while they travel through the exchangers. Consequently, the temperature both the fluids is uniform across the section and varies only in the direction in which flow takes place. Third classification देखिए बच्चों, design and constructional features. So on the basis of design and constructional features, the heat exchangers are classified as under concentric tubes. Okay, so look at here, in this type 2 concentric tubes are used. Concentric tubes, okay, these are the concentric tubes are used, each carrying one fluids. Okay, इसमें से फ्लूइड जाएगा और इसमें से भी फ्लूइड जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो में भी पैरेलल और काउंटर, पैरेलल भी हो सकते हैं, काउंटर भी हो सकते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ हीट एक्सचेंजर इंक्रीजेज बाय यूजिंग द स्वर्लिंग फ्लो। अगर स्वर्लिंग फ्लो अगर हमने वहाँ पे बढ़ा दिया तो उसका हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। ये देखिए बच्चों, 1 शेल पास, 2 ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर्स, दिस आउटर ईयर इज अ शेल, इसको हम शेल कहते हैं, बराबर है। ये हमारे पास में बैफल प्लेट्स दी है, दिस इज द बैफल प्लेट टू सपोर्ट द हीट एक्सचेंजर्स एंड टू गिव द डायरेक्शंस। हमने ये 4th सेम में पढ़ा था पावर प्लांट के अंदर, जब हमने डिफरेंट टाइप के बॉयलर पढ़े थे। ये कोल्ड फ्लूइड आ रहा है इसमें से और ये कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा अक्रॉस द कंडेंसर। ओके, अक्रॉस दिस हीट एक्सचेंजर्स, ये कंडेंसर का एक टाइप का डायग्राम है। यहाँ से ये कोल्ड फ्लूइड आ गया, दिस इज द कोल्ड फ्लूइड सर्कुलेशंस, और यहाँ से हमारा कौन सा फ्लूइड आ रहा है बच्चों, हॉट फ्लूइड इन। ओके, हॉट फ्लूइड इन। अब ये वाले नीचे के शेल से जाएगा, ये इस तरह से ये ट्यूब में से जा रहा है 1 2, ऑब्जर्व दिस हॉट फ्लूइड यहाँ से आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से एंटर करेगा और ये हॉट फ्लूइड यहाँ से निकल के क्या मिल जाएगा हमारे को, हॉट फ्लूइड आउट। ओके, और यहाँ से ये कोल्ड फ्लूइड गया और यहाँ से हमको कोल्ड फ्लूइड आउट मिला। तो वी ऑलरेडी लर्न इन अवर बॉयलर, ये सब पढ़े हमने। ये देखिए 2 शेल पास, 4 ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर्स, shell and tube. This is the shell fluid, the fluid is flow in this direction if you observe, right? Okay, this is the tube, ये tube के अंदर से flow हो रही है fluid. Okay, look at this, this is the 2 shell and 4 tubes, 1 2 3 and 4 guys. Okay, ये बैफल प्लेट दी है यहाँ पे, बैफल प्लेट का काम है टू सपोर्ट द दिस हीट एक्सचेंजर्स। Okay, then another classification same is here. If you read this theory, in this type of heat exchanger, shell and tube, one of the fluid flow through the bundle of the tubes enclosed by a shell. एक हमारे पास में शेल रहेगा ये, और इसके अंदर नंबर ऑफ द ट्यूब्स रहेंगी, इसके अंदर से फ्लूइड सर्कुलेट होगा। ये आउटर जो है ये शेल रहता है हमारा। The other fluid is forced through the shell and its flow over the outside surface of the tube. Such arrangement is employed where reliability and heat transfer effectiveness are important. With the use of multiple tube, heat transfer rate is improved due to increase the surface area. Multiple shell and tube pass है बच्चों, multiple shell and tube pass are used for enhancing the overall heat transfer. Multiple shell pass is possible where the fluid flowing through the shell is rerouted. The shell side fluid is forced to flow back and forth across the tubes by baffles. Multiple tube pass exchanger are those which are reroute and fluid through the tubes is opposite directions. Compact heat exchangers, what is here? There are special purpose heat exchangers have very large heat transfer area per unit volume of the heat exchangers. They are generally employed where convective heat transfer coefficient associated with one of the fluid is much smaller than associated with the other fluids. Example देखिए बच्चों इसके कौन से, प्लेट फिन, फ्लैटर पिन ट्यूब,
heat exchangers in a compacts. Okay. अब ये चौथा क्लासिफिकेशन बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्लूइड्स. तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्लूइड्स हीट एक्सचेंजर आर क्लासिफाइड. व्हाट इज, ये कंडेंसर है और दूसरा है हमारे पास में इवापोरेटर. कंडेंसर का काम रहता है ठंडा करना फ्लूइड को और इवापोरेटर का काम रहता है फ्लूइड को गर्म करना. ये हम सब पढ़ चुके हैं 4th सेम में. तो कंडेंसर की देखिए डेफिनेशन. इन अ कंडेंसर द कंडेंसिंग फ्लूइड रिमेन्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर while the temperature of the colder fluid generally increases from inlet to outlet. मतलब कोल्डर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इनलेट से तो आउटलेट तक. द हॉट फ्लूइड लॉस अ लैटेंट हीट पार्ट ऑफ हीट विच इज एक्सेप्टेड बाय द कोल्ड फ्लूइड. तो यहाँ पे देखिए बच्चों इन कंडेंसर द कंडेंसिंग फ्लूइड जो ठंडा होते जाएगा. कंडेंसर हमने पढ़ा था, ये डायग्राम थी हमारे पास में कंडेंसर की. जो कंडेंसेशन हमको जो मिलेगा यहाँ पे उसका टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट. ये देखिए दिस इज द कंडेंसन टेम्परेचर्स T1 H1 बराबर TH2. ओके. लेकिन जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. यहाँ पे TC1 देखेंगे अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमारा टेम्परेचर है और अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लेंथ है. तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कैसा हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है. तो यहाँ पे TH क्या है हमारा कंडेंसर, जो कंडेंसेशन जो मिल रहा है हमको ठंडा होके जो फ्लूइड मिलेगा स्टीम जो ठंडी हो जाएगी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो इसका थीटा कितना दिया हमको TH माइनस TC. दिस इज द डिफरेंस ऑफ कंडेंसेशन माइनस कोल्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज द थीटा. अब ये हो गया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडेंसर. इवापोरेटर के लिए ये डायग्राम. तो देखिए इवापोरेटर में क्या है. इन दिस केस द बॉइलिंग फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड रिमेन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स. ये देखिए कोल्ड फ्लूइड जो ये रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे है इन इवापोरेटर में. TC1 इज इक्वल टू TC2 मतलब इनलेट बराबर आउटलेट. व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट. लेकिन जो ये जो हॉट फ्लूइड दिख रहा है इसका टेम्परेचर क्या होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इवापोरेटर्स. और यहाँ पे जो थीटा मिलेगा हमारे को वो मिलेगा TH माइनस what is TC, TH minus TC. So this is the figure of the evaporators. Okay, this is the figure of the condensers. Okay, so another is very important topic guys. What is heat exchanger analysis? Okay, so this is very important derivations in heat exchanger analysis. We have to discuss their LMDT and then derivations. Okay, so let's we discuss now heat exchanger. So in heat exchanger analysis, let's we derive some derivations for counter flow and parallel flow heat exchangers. So first of all we discuss this heat exchanger analysis. Okay, so for designing or predict the performance of a heat exchanger, it is necessary that the total heat transfer may be related with governing parameters. तो ये किस पे डिपेंड है. तो पहला देखिए बच्चों क्या है, U is the overall heat transfer coefficient due to the various mode of heat transfers. Okay, a total surface area of the heat transfer, कितने सरफेस से हमारी हीट ट्रांसफर हो रही. सपोज इतना एरिया हमारे पास में है तो इतने सरफेस से हम एरिया ये एरिया से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों. एंड अनदर इज व्हाट इज T1 एंड T2 मीन्स इनलेट एंड आउटलेट फ्लूइड टेम्परेचर्स. तो फिगर shows a overall energy balance in a heat exchangers. So this is the diagram of the heat exchanger. Look at the guys here. So what is first m dot? M dot is what is our mass flow rate. What is the unit always? kg per seconds. मतलब पर सेकंड में से कितना मास ये हीट एक्सचेंजर में से जा रहा. Cp is what is specific heat of a fluid at constant pressures. What is the unit? Joule per kg degree Celsius. T is the temperature of the fluid in degree Celsius. Delta T the temperature drop or rise of a fluid across the heat exchangers. Okay, कहाँ पे ड्रॉप होगा और कहाँ पे राइज होगा. तो दिस इज द डेल्टा टी.
and this is the diagram. If you observe here, this TH1 is a hot fluid, this TC1 is a what is cold fluid. So थीटा 1 जो है ये डिफरेंस आएगा हमारा TH1 माइनस TC1 का, और आउटलेट के लिए अगर देखेंगे थीटा 2 तो वो आएगा डिफरेंस है बच्चों TH2 माइनस TC2 का. ओके, एंड दिस इज द हीट ट्रांसफर एरिया. यू कंसिडर दिस पोर्शन. सो फ्रॉम दिस हीट पोर्शन द हीट ट्रांसफर एरिया. और हीट हमेशा कहाँ से फ्लो होती है बच्चों? हॉट से लेके तो कोल्ड. दिस इज द लाइक दैट द हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, सबस्क्रिप्ट H and C refers to the hot and cold fluid respectively. Subscript 1 and 2 corresponding to for inlet and outlet condition respectively. Okay, 1 जो है वो inlet के लिए, 2 जो है वो outlet के लिए. Assuming that there is no heat loss to the surroundings. Okay, no heat loss to the surrounding. We assumption there is no heat loss to the surrounding is 0. Potential and kinetic energy changes are negligible. Potential energy and kinetic energy is also negligible here. From the energy balance in the heat exchanger we have, so heat given up by the hot fluid, ये हम पढ़े बच्चों ऑलरेडी, Q इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस. तो ये कितना रहेगा हॉट फ्लूइड के लिए? हॉट फ्लूइड के लिए रहेगा ये Q, मास ऑफ हॉट फ्लूइड, specific heat of a hot fluid into temperature difference delta T minus what is TH1 minus TH2. Heat pick up by the cold fluid. Cold fluid कितना पिकअप करेगा? Q is equal to mass of a cold fluid, specific heat of a cold fluid, temperature difference of a cold fluid, outlet minus inlet का. और टोटल हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर जो कितना रहेगा बच्चों? वो रहेगा Q is equal to UA थीटा m. U हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A is the area from which heat transfer is takes place, और थीटा m जो है हमारा इट इज अ मीन वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस और लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस. इसी को कहते हैं हम LMDT. तो अब देखिए LMDT यानी क्या है? लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, नथिंग बट द LMDT. सो लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMDT इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर डिफरेंस which if constant would give the same rate of heat transfer as actually occurs under the variable condition temperature difference. This is called as the LMDT. So in order to derive the expression for LMDT for various type of the heat exchanger, the following assumptions. कौन कौन से assumptions हमको जरूरी है LMDT के लिए? क्योंकि LMDT में हमको समझ में आया टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट, and will give the same rate of heat transfer as actually occurs under the variable condition of a temperature difference. तो ये अचीव करने के लिए कौन कौन सा assumption है? देखिए पहला, the overall heat transfer coefficient U is constant. ये constant जरूरी है. The flow condition are steady. ये heat exchanger है हमारा, तो इसमें से flow condition जो होगा वो कैसा होना चाहिए? steady, does not change with respect to time. The specific heat and mass flow rate both the fluids are constant. इसमें से जो फ्लूइड जाएगा उसका मास फ्लो रेट जो है वो कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट, और उनकी स्पेसिफिक हीट भी क्या रहनी चाहिए बच्चों? कांस्टेंट रहनी चाहिए. देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स. यहाँ से सराउंडिंग में किसी भी प्रकार की हीट लॉस होना चाहिए क्या? नहीं, ड्यू टू द एक्सचेंज बीइंग परफेक्टली इंसुलेटेड. देयर इज नो चेंज ऑफ फेज आइदर द फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर. फेज चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सॉलिड का लिक्विड हो रहा है या फिर लिक्विड का वेपर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए. The change in potential energy and kinetic energy are negligible. Axial conduction along the tube of the heat exchange is also negligible. अगर axially अगर heat conduction होगा तो वो भी क्या होना चाहिए? negligible. So these are the following points or assumption is required to achieve the derivation of LMDT. So let's we solve the first derivation for logarithmic mean temperature difference for parallel flow. तो ये डेरिवेशन बच्चों बहुत IMP है, एग्जाम में हमेशा आते हैं 7 मार्क के लिए या फिर 8 मार्क के लिए. एक है पैरेलल फ्लो के लिए और एक है बच्चों काउंटर फ्लो के लिए. तो देखिए पहला डेरिवेशन निकालते हैं हम LMDT का काय के लिए? पैरेलल फ्लो. अब पैरेलल फ्लो तो हमको पता है, ये हमारी डायग्राम में बच्चों पैरेलल फ्लो की, क्योंकि पैरेलल फ्लो में क्या होगा? हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड कैसे फ्लो होंगे? दोनों भी सेम डायरेक्शन में. उसी को कहते हैं हम क्या? पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट्स. बराबर है. तो इसका डेरिवेशन किस तरह से होगा देखिए अभी. तो ये डायग्राम मैंने बनाई है पैरेलल फ्लो की.
तो अलॉन्ग द वाई एक्सिस क्या है हमारा टेम्परेचर है और अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या है हमारा एरिया कंसिडर किया हमने। सबस्क्रिप्ट देखिए एच एंड सी रेफर टू हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड और ये जो सबस्क्रिप्ट 1 और 2 है रेफर टू इनलेट एंड आउटलेट कंडीशंस। अब ये हॉट फ्लूइड जो बच्चों ये पाइप के अंदर से जा रहा है उसके आजू बाजू से क्या जा रहा है ये कोल्ड फ्लूइड जा रहा है एनालोस सराउंडिंग द पाइप्स। तो ये ग्राफ जब हमने बनाया तो θ1 जो है हमारे पास में वो काय का टेम्परेचर डिफरेंस है। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस दिस θ1 द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस दिस कोल्ड फ्लूइड। TH1 क्या है हमारा इनलेट हॉट फ्लूइड और TC1 जो है वो इनलेट कोल्ड फ्लूइड बराबर है। ये θ1 θ2 अगर देखेंगे तो वो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा TH2 माइनस TC2 मतलब TH2 है हमारा आउटलेट हॉट फ्लूइड माइनस आउटलेट कोल्ड फ्लूइड्स। ओके तो जब ये हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा ये हमारा इसका TH1 इधर आएगा ये TH2 ये आएगा बच्चों कोल्ड के लिए TC1 और ये बाहर निकल जाएगा TC2 के लिए। तो हॉट फ्लूइड जो अगर देखेंगे ग्राफ में तो उसका जो टेम्परेचर है बच्चों ये टेम्परेचर है तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है धीरे धीरे कम होते जा रहा है बराबर है। उसका टेम्परेचर कम हो गया मतलब यहाँ पे हम क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि TH1 इज ग्रेटर देन TH2 और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर देखेंगे तो वो क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है क्योंकि हीट ट्रांसफर हो जाएंगी कहाँ से हॉट फ्लूइड से तो कोल्ड फ्लूइड। ये हॉट फ्लूइड किसको हीट ट्रांसफर करेगा ये कोल्ड फ्लूइड को दोनों साइड से इसको हीट ट्रांसफर होगी तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसका टेम्परेचर देखिए ग्राफ में बच्चों ये राइज होते जा रहा है तो वो बन गया TC2। तो कोल्ड फ्लूइड का ग्राफ बढ़ रहा हॉट फ्लूइड का ग्राफ कम हो रहा। ये जो डिफरेंस दिख रहा हमको ये थीटा डिफरेंस है हमारा TH माइनस TC का और यहाँ पे ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये DTH हमने बना लिया ये DTC बना लिया कोल्ड फ्लूइड के लिए और इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है हमारा DQ। यस और नो यस। तो देखिए बच्चों अभी और इसमें से हमने स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया उसका एरिया कितना से बताया हमने DA से बताया। ओके तो देखिए अभी DTH बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ व्हाट इज TH1 माइनस TH2 और DTC बोले तो ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं DTH बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ TH1 माइनस TH2 और DTC मीनिंग व्हाट इज टेम्परेचर DTC मीनिंग टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ व्हाट इज TC2 माइनस TC1 गाइस इन दिस वे। तो देखिए डेरिवेशन इसका भी। सो रेफर टू 9 फिगर दिस वन फिगर्स ये फिगर को हमने अभी रेफर किया है which shows the flow arrangement and distribution of a temperature in a single pass parallel flow heat exchangers. Okay, let's consider a small elemental area dA of the heat exchangers. उसमें का हमने ये small elemental area consider किया बच्चों dA you observed here. The rate of flow of heat through this elemental area कितनी हीट उसमें से फ्लो हो रही तो क्या इक्वेशन मिला हमको dq is equal to u dA TH माइनस TC। ओके थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंटल एरिया अगर ये हमने वो ग्राफ बनाया है टेम्परेचर वर्सेस एरिया का ये है हॉट फ्लूइड का ग्राफ और ये है कोल्ड फ्लूइड का ग्राफ बराबर है। इसमें से ये हमने स्मॉल एलिमेंटल एरिया कंसिडर किया ये वाला DA बराबर है। ये है हमारा TH1 ये बन गया था TH2 ये हमारा TS1 और ये था बच्चों TC2। तो इसके अंदर का ये जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है DA इसमें से कितनी हीट फ्लो हो रही Q इज इक्वल टू U इंटू DA TH माइनस TC। तो इसको हमने लिखा U इज इक्वल टू DA इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा T यानी क्या है हमारा TH माइनस TC गाइस। ओके तो एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर DQ थ्रू द एरिया DA द हॉट फ्लूइड cooled by DTH okay and whereas the cold fluid heated by a DTC। हॉट फ्लूइड क्या होगा हमारा ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होते जा रहा है दिख रहे और कोल्ड फ्लूइड जो उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है
बराबर। ये ग्राफ अगर देखेंगे हम तो हॉट फ्लूइड का ऐसे शो हो रहा है ये DTH से, और कोल्ड फ्लूइड जो उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वो हो गया DTC से। ओके, द एनर्जी बैलेंस ओवर डिफरेंशियल एरिया DA में भी रिटर्न एज, इसको किस तरह से लेके हम देखिए अभी, DQ इज इक्वल टू माइनस MH CPH DTH इज इक्वल टू MC CPC DTC। ओके, सो व्हाट इज वी गेटिंग हियर, DQ is equal to U dA TH minus TC. Yes or no? Yes. So DTH is negative and DTC is positive. ये DTH हमको क्या मिला बच्चों यहाँ पे, ये देखिए निगेटिव मिला, और DTC हमको क्या मिला, पॉजिटिव मिला। ये DTH क्यों निगेटिव मिल रहा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम कम होते जा रहा, और DTC ये कोल्ड वाला क्या मिला, पॉजिटिव, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जा रहा। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला है बच्चों, देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, DQ इज इक्वल टू माइनस MH CPH DTH गाइस। ये किस तरह से आ गया देखिए अभी, DTH को हम किस तरह से लिख सकते हैं फिर, ये वाली इक्वेशन को माइनस DQ M.H CPH, बराबर है। ये DTH बोले तो क्या बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस, अभी मैंने बताया था कौन सा हो जाएगा ये टेम्परेचर डिफरेंस, TH2 माइनस TH1। तो TH1 क्या आएगा ज़्यादा, क्योंकि ये अगर समझो 40 है तो ये कितना हो जाएगा -50, कितना आंसर आएगा -10, इसलिए यहाँ पे क्या है ये निगेटिव साइन है, क्योंकि DT बोले तो आउटलेट माइनस इनलेट रहता है, इसलिए ये माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस DQ अपॉन MH इंटू CPH। अगर यहाँ पे भी हम लेंगे ये TH1 माइनस TH2, ये DTH को हम अगर चेंज कर देंगे तो ये चेंज कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे TH2 माइनस TH1, जैसा ये आउटलेट माइनस इनलेट, आउटलेट माइनस इनलेट, लेकिन इनलेट ज़्यादा रहेगा आउटलेट कम, इसलिए ये इसके लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ में आया सबको, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है DTH इज इक्वल टू माइनस DQ अपॉन मास फ्लो रेट ऑफ अ हॉट फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ अ हॉट फ्लूइड्स। ओके, तो माइनस DQ CH, तो मास फ्लो रेट ऑफ अ हॉट फ्लूइड और स्पेसिफिक हीट ऑफ अ हॉट फ्लूइड, इसको कहते हैं हम हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ हॉट फ्लूइड। इसकी डेफिनेशन क्या आएंगी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ mass flow rate of a hot fluid and specific heat of a hot fluid, it is called as the heat capacity, and which is replaced by what is this CH. okay, similarly for a cold fluid के लिए देखो फार्मूला हमने बनाया DQ अपॉन M.C CPC, तो ये रिप्लेस हो गया बच्चों ये से हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट फॉर अ कोल्ड फ्लूइड, तो DQ अपॉन CC। ओके, so once again I show here this CH means product of the mass flow rate of a hot fluid and specific heat of a hot fluid, that is called as the heat capacity or water equivalent of a hot fluid। CC बोले तो बच्चों mass flow rate of a cold fluid, specific heat of a cold fluid, nothing but the heat capacity or water equivalent of a cold fluid। तो यहाँ पे देखिए M.H and M.C are mass flow rate of a fluid and CPH and CPC is the specific हीट ऑफ अ रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक हीट्स, वी नो दैट। तो अब यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन मिले हमको बच्चों, इसको मैंने बनाया सपोज इक्वेशन 1 और ये मिला हमको इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों को माइनस किया, जिसको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या मिला बच्चों, देखिए ये दोनों माइनस होकर हमको मिल गया ये वाला इक्वेशन DTH माइनस DTC, तो माइनस DQ अपॉन 1 अपॉन CH प्लस CC, उसमें से माइनस को हमने कॉमन निकाला, तो ये DTH माइनस DTC बोले तो क्या हो गया हमारे पास में, थीटा हो गया, डी थीटा बोले तो हो जाएगा DTH माइनस DTC, तो ये थीटा आ गया बच्चों, माइनस DQ 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, अभी देखिए ये DQ की वैल्यू, द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द DQ हमको दिया है, ये देखिए DQ के हमारे पास में U DA TH माइनस TC, क्योंकि हीट ट्रांसफर हमने कंसिडर किया ये स्मॉल एलिमेंटल एरिया, पहले हम स्मॉल एलिमेंटल ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये फार्मूला लग गया, माइनस
u dA TH माइनस TC 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC गाइस। तो देखिए फिर ये d थीटा इज इक्वल माइनस u dA थीटा 1 अपॉन CH प्लस CC। अब यहाँ पे हमने रीअरेंज किया, ये थीटा क्या चले गया इसके डिवाइडेशन में चले गया, तो ये आ गया d थीटा अपॉन थीटा, यहाँ पे बचा माइनस u dA 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC। अब ये हम निकाल रहे थे स्मॉल एलिमेंट के लिए, अब पूरे इसके लिए अगर हम निकालेंगे कितना हीट ट्रांसफर हो गया बच्चों, टेम्परेचर वर्सेस एरिया, ये हॉट फ्लूइड का ग्राफ, ये कोल्ड फ्लूइड के लिए, ये पहले हमारे पास में स्मॉल एरिया dA था। अब यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा ले रहे हैं हम टोटल, तो टोटल जब जब आता है तब तब हमारे पास में क्या लगता है, इंटीग्रेशन लगता है। सो इंटीग्रेटिंग बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन फ्रॉम एरिया 0 टू एरिया A। यहाँ पे एरिया 0 है और यहाँ तक एरिया क्या है बच्चों, A है ये हीट एक्सचेंजर का। तो फिर इसके लिमिट्स लग गए 1 to 2 d थीटा अपॉन थीटा, यहाँ पे ये टर्म कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, यहाँ से एरिया लग गया 0 to A u dA। तो इसका लॉगरिथमिक आ गया बच्चों लॉग इन थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ये आ गया माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या रहता है बच्चों, A रहता है, तो ये आ गया माइनस UA 1 अपॉन CH प्लस CC। नाउ द टोटल हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन द टू फ्लूइड इज गिवन बाय, क्या मिला हमको देखिए अभी, Q इज इक्वल टू CH TH1 माइनस TH2 फॉर हॉट फ्लूइड, ये वाला इक्वेशन एक हमारे पास में है, CH TH1 माइनस TH2, ये तो हमको पता है ये हॉट फ्लूइड के लिए, और कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या आएगा बच्चों CC, ये दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, हाँ ये ध्यान में रख लिए, TC2 माइनस TC1। तो इसको हमने रीअरेंज किया, पहले 1 अपॉन CH लिया ये दोनों इक्वेशन के लिए, तो ये आ गया TH1 माइनस TH2 ये, फिर इसको कंपेयर किया इसके साथ में 1 अपॉन CC, ये देखिए 1 अपॉन CC TC2 माइनस TC1 अपॉन ये Q, ये ऐसे दो इक्वेशन हमको मिले। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन CH एंड CC इन इक्वेशन नंबर 10.6, यानी जो हमने इक्वेशन प्रूव किया है उसके अंदर हमने ये पुट करना है इसके अंदर। ओके, तो देखिए बच्चों इसमें हम पुट करेंगे ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास में 10.6, ये रेफर है RK राजपूत बुक में से हीट ट्रांसफर में से एज इट इज। तो देखिए फिर हमको क्या मिला, लॉग इन थीटा 2 अपॉन थीटा 1 माइनस UA TH1 माइनस TH2 Q प्लस TC2 माइनस TC1 अपॉन Q। तो U अपॉन ये Q इसमें से कॉमन है, तो ये कॉमन निकाला मैंने, इसको देखेंगे बच्चों, अभी देखिए TH यहाँ से माइनस साइन, ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया फिर TH2 माइनस TC2 माइनस TH1 माइनस TC1, इसको हमने एडजस्ट किया अभी। तो यहाँ पे हमको मिला फाइनल डेरिवेशन UA अपॉन Q थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्योंकि थीटा 2 जो है बच्चों हमारा क्या है TH2 माइनस TC2, और थीटा 1 जो है ये हमारा TH1 माइनस TC1। तो फिर आखिरी में क्या मिल गया बच्चों, Q इज इक्वल टू UA थीटा 2 माइनस थीटा 1 लॉग इन थीटा 2 अपॉन थीटा 1। सो अबव इक्वेशन में बी रिटर्न एज QUA थीटा m। सो थीटा m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, ये है थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन लॉग इन थीटा 2 अपॉन थीटा 1, एंड थीटा m इज नथिंग बट व्हाट इज लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस LM dt। Okay guys, so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.